बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. Today we start with the name of Allah, the most beneficent and ever merciful. Welcome back to all the parents and teachers. And today we are having the revision of the chapter number 8, and this is the question wise revision in video number 5. So our today's topic is chapter number 8. In our previous video class for the revision of chapter number 8, we have discussed all the relevant topics that we have to discuss in this particular chapter, and these topics include number 1, the sine and the cosine of the obtuse angle. The topic number 2 is area of triangle. The topic number 3 is sine rule, and topic number 4 is cosine rule. And today we are having exercise 8A as our first exercise. And this is from page number 227, book page number is 227. With the help of this exercise, today we are learning that how do we apply the two different formula that we have discussed earlier. Number 1, the formula number 1 is sine A is equals to sine 180 degrees minus A, and the second one is cos A is equals to minus cos 180 degrees minus A. तो ये है वो दो फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस रिवीजन क्लास में भी पढ़े थे। इसके अलावा फिजिकल क्लासेस में जब हमने इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था तब भी सीखे थे कि ये फॉर्मूला एप्लीकेशन हम क्यों करते हैं, किस तरह से इन फॉर्मूलाज को ड्राइव किया जाता है और इनके एप्लीकेशन का मकसद क्या होता है। इन फॉर्मूलाज की जो एप्लीकेशन है, इनका इस्तेमाल है, इनका यूज है, वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई भी एंगल जो कि इस वक्त यहाँ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस, ये कैपिटल ए आपका गिवन एंगल है। इफ योर गिवन एंगल इज एन acute angle, then after the application of this particular formula you will have an obtuse angle on the right hand side. और अगर आपका given angle एक obtuse angle है तो right side पर मौजूद जो a है आपका after the subtraction of the 180 you will have an acute angle. तो अगर आपके पास है acute angle so you will come to the obtuse angle, और अगर आपको क्वेश्चन में given है एक obtuse angle तो डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो एक acute angle ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन करने होंगे हमें पहले अपने बोर्ड के। यस, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 227 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल। दिए जाने वाले हर पार्ट को आपने रिप्रेजेंट करना है एज एन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। यानी जो रेशियोज आपको गिवन है ऑब्वियसली पार्ट्स में दे आर ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बट दे आर रिप्रेजेंटिंग एन एंगल दैट इज मोर देन 90 डिग्री but less than 180 degrees means an obtuse angle, and now we have to convert this particular given obtuse angle into an acute angle by the use of the two different formulas. So part 1 is sine 110 degrees. This is our part number 1. So the method of solution that we follow in our class is same. That is, firstly mention the solution,
then after skipping one line you will repeat your part, then you will start solution by step number 1. अब हम step number 1 लिखेंगे और step number 1 में सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख करके दिखा देना है. sin A is equals to sin 180 degrees minus A. Now sin 110 is equals to sin 180 degrees minus the given angle. A is representing your given angle and given angle is 110. तो यहाँ हम A को replace कर लेंगे 110 degrees से. So in this simple way the sin 110 degrees has become sin 70 degrees. तो देखा आपने कितनी आसानी से एक फॉर्मूला एप्लीकेशन की मदद से विद इन अ सिंगल लाइन हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल को एक एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर लिया है. sin 110 डिग्रीज ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, हमारे गिवन एंगल, और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि आप इसे एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कीजिए. तो हमने फॉर्मूला एप्लीकेशन करके इसे विद इन अ लाइन एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर लिया है. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फ्रॉम द सेम पेज, पेज नंबर 227. Given that sin 45 degrees is equals to cos 45 degrees is equals to 0.707 when corrected to the three significant figures. दो वैल्यूज हमें गिवन है, एक है sin 45 degrees, दूसरी है cos 45 degrees. Both the trigonometric ratios are given for the acute angles and the numeric value of them is 0.707 which is already corrected to the three significant figures. यानी डेसिमल पॉइंट के बाद ऑलरेडी हमें क्लोज करके राउंड ऑफ करके हमारे नंबर को दिया गया है फॉर द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द यूज ऑफ अ कैलकुलेटर. यस, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द गिवन पार्ट्स बट विदाउट द यूज ऑफ अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर के इस्तेमाल से हमारा ये वर्क जो है इसका कोई भी स्टेप नहीं बनेगा एंड इट विल बिकम क्वाइट सिंपल एंड इजी. Everybody knows how to use a calculator to find out the trigonometric ratios. But the trick over here in this question is you have to find out the values of the given parts without the use of a calculator. So let's start on the board that how can we find out the values of such type of questions without the use of a calculator. 2 cos 45 degrees and plus 3 sin 135 degrees. Yes, this is 135 degrees. अब देखिए cos 45 डिग्रीज की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में, दैट इज 0.707. sin 135 को अगर हम देखें तो sin के साथ एंगल गिवन है हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल. अब ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हम एक ऑब्ट्यूज एंगल का कन्वर्जन बहुत ही सिंप्लिसिटी, बहुत ही आसानी के साथ एक एक्यूट एंगल में किस तरह से कर सकते हैं. तो अगेन सेम फॉर्मूला हम अपना यूज करेंगे. sin A इज इक्वल्स टू sin 180 डिग्रीज माइनस A. अब इज इक्वल टू मार्क के साथ मैं अपना ये लेफ्ट पार्ट जो लेफ्ट साइड पर है साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन के, इसे हम सिमिलर रखेंगे 2 cos 45 डिग्रीज. अब हम मार्क ऑफ एडिशन यूज करते हुए इस फॉर्मूला एप्लीकेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला एप्लीकेशन 3 के बाद अप्लाई होगा. तो यहाँ पर आपने एक लार्ज ब्रैकेट का यूज करना है. देन यू विल राइट साइन विद इन स्मॉल ब्रैकेट यू विल मेंशन 180 डिग्रीज and A obviously as I have told you A represents your given angle. So your given angle over here is 135 degrees. 135 degrees हमने यहाँ पर लिख लिया, लार्ज ब्रैकेट क्लोज कर दिया. 3 sin अब 180 minus 35 degrees, so it will become sin 45 degrees. Now we know that the cos 45 degrees and the sin 45 degrees both are equal and they are representing a numerical figure that is 0.707. So we are going to replace cos 45 degrees by 0.707 plus 3 multiply by again 0.707. Now it will become 1.414 and it will become 2.121. After the subtraction it will give the answer 3.535. This is our final answer. तो ये था एक बहुत ही आसान तरीका का जिसकी मदद से हमने इस बड़ी वैल्यू, एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा पार्ट हमें गिवन था 2 sin 45 डिग्रीज प्लस sin 135 डिग्रीज, इसकी वैल्यू को ड्राइव कर लिया है. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि हमारी बुक के नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 228 पर, और इसके अंदर हमारे पास
जो पार्ट हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज योर पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन 7. 6. Yes, in question number 6 we are having the statement find an acute angle whose sine is. एक एंगल है, आपको फाइंड करना है एक सिंपल एंगल जो कि एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, और उसके साइन की वैल्यू हमें गिवन है. पार्ट ए और बी हम यहाँ पर सॉल्व करने लगे हैं. पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड पर, पार्ट बी आप खुद सॉल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस पार्ट. तो पार्ट ए में हमारे पास है 0.52. 0.52 सॉल्यूशन आप मेंशन करेंगे, फिर आपने यहां लिख लिया 0.52, अपने पार्ट को रिपीट किया आफ्टर स्किपिंग वन लाइन. अब हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन. ये आपके पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू है साइन की, और साइन इस वक्त हम अप्लाई कर रहे हैं एक ऐसे एंगल पर जो कि एक्यूट होने के साथ साथ फिलहाल हमारे लिए क्या है, अननोन है, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू मालूम नहीं है. तो आप साइन x डिग्रीज इज इक्वल टू 0.52 की इक्वेशन बनाएंगे. अब x डिग्रीज को यानी एंगल को हमने करना है फाइंड, तो हम साइन को राइट साइड पे ले जाके करवाएंगे साइन इनवर्स, एंड इट विल बी अप्लाइड ऑन 0.52, और कैलकुलेटर की मदद से आप साइन इनवर्स 0.52 इजीली यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास x डिग्रीज का आंसर आ जाएगा. अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल मालूम करना है जबकि उसका साइन सेम है यानी 0.52 डिग्रीज है. फाइंड एन ऑब्ट्यूज एंगल. हियर वी हैव वर्क फॉर द एक्यूट एंगल. अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो हम अपना क्वेश्चन बिल्कुल सेम रखेंगे, स्टार्टिंग स्टेप्स हमारे तमाम सेम रहेंगे, इक्वेशन भी हम सेम रिपीट करेंगे. साइन फॉर x डिग्रीज राइट नाउ इक्वल्स टू 0.52 डिग्रीज. For finding out the x degrees, the sign will be inverse on the right hand side 0.52, and x degrees is equals to, फिर आप यहाँ एक छोटा सा हेड लगा लेंगे फॉर ऑब्ट्यूज एंगल. यानी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम वर्क किस तरह से करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम ये करेंगे कि हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. साइन a is equals to साइन काउंटर 180 डिग्रीज माइनस a. साइन विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस a. थर्टी 1.3 डिग्रीज और यहाँ आप 180 डिग्रीज में से डायरेक्टली थर्टी 1.1 डिग्रीज को माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 149.1 डिग्रीज. तो ये है मेथड क्वेश्चन नंबर 7 का. क्वेश्चन नंबर 8 पर जब आप आएंगे तो फाइंड एन एक्यूट एंगल हुज कोसाइन इज. तो यही सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर देंगे कॉस के लिए. यहाँ आपने साइन की इक्वेशन बनाई, यहाँ कॉस की इक्वेशन बना लोगे. एक्स डिग्रीज के लिए आप कॉस को यहाँ लाके कॉस इनवर्स करवाओगे, और जब आप कॉस इनवर्स फाइंड करेंगे इस पर्टिकुलर नंबर का, तो आपके पास जो आंसर आएगा ऑब्वियसली वो एक एक्यूट एंगल ही होगा. और अब हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8B.
एक्सरसाइज 8B फ्रॉम पेज नंबर 233 और इस क्वेश्चन में जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपने अप्लाई करना है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें आप यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और इसके अंदर जो आपका बेसिक फॉर्मूला आप पढ़कर आए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस से एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जिसको क्या होता है 1/2 b इंटू एच, यानी आपने बेस साइड को हाइट से ट्रायंगल की मल्टीप्लाई करना है। और ये फॉर्मूला जो अब हम बोर्ड पर लिख रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल होगा, ये फॉर्मूला हम किसी भी ट्रायंगल के तब यूज करते हैं जब हमें किसी ट्रायंगल की हाइट मालूम ना हो। बेस ऑब्वियसली हमें हर ट्रायंगल की पता होती है, इशू सारा होता है हाइट का। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी हाइट हमें ऑब्वियसली डेफिनेटली पता होती है, और अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई एक एंगल ट्रायंगल ऐसी है जो कि या तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों ही कंडीशंस में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो इस वक्त मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हूं। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 AB sin C। ट्रायंगल के टोटल हमारे पास है 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स मस्ट बी गिवन टू फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। और साथ साथ एक और चीज जो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, वो ये है कि इन दोनों साइड से मिलकर बनने वाला जो एंगल है जिससे हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी कई बार बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, तो ये 3 टर्म्स हमारे पास गिवन होनी चाहिए, 2 साइड्स और एक पर्टिकुलर एंगल जो कि इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल होगा। अब हम ये अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट हम कर लेते हैं फ्रॉम बुक, पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास ट्रायंगल DEF है। जब भी आप अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 8B पे डेटा का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो डेटा आप सबसे पहले लिखेंगे। डेटा बनाने से हमें यह आसानी हो जाती है कि हमारे गिवंस और हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें अलग अलग क्लियरली पता चल जाते हैं। और इससे भी पहले जो हम एक काम करेंगे वो ये है कि हम अपने गिवन डायग्राम को रिपीट करेंगे ताकि हम उसमें लेबलिंग कर सकें। एक लाइन हमारे पास इस तरह से है, इसका नाम है DF, E है यहाँ पर, दिस इज E पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन हमारी जा रही है पीछे की तरफ, यहाँ पॉइंट D पर, इसे हम लिखेंगे पॉइंट D। और ये 2 लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हम थर्ड साइड ड्रॉ करने लगे हैं। ये हमारा थर्ड साइड है। यहाँ एक एंगल हमें गिवन है फॉर द E वर्टेक्स दैट इज 111 डिग्रीज, और साथ साथ हमें 2 साइड्स भी गिवन है। एक साइड EF है हमारे पास 9 cm और एक साइड DE है हमारे पास 7 cm। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट 2 साइड्स एक एंगल का होना जरूरी है। यहाँ 2 साइड्स गिवन है, साइड DE साइड EF, और दोनों से जो इनका कंबाइन एंगल है यानी इनके जॉइंट वर्टेक्स से जो एंगल बनेगा वो एंगल E है, वो भी हमें गिवन है एज एन इंक्लूडेड एंगल दैट इज 111 डिग्रीज। लेकिन इससे पहले हम इसे करेंगे लेबल। किसी भी ट्रायंगल को लेबल हम क्यों करते हैं? लेबल हम इसलिए करते हैं ताकि उससे गिवन साइड्स और गिवन एंगल्स हमें इजीली समझ में आ सके और हमारी डायग्राम और ज्यादा क्या हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए, इजी टू सॉल्व हो जाए। अब लेबलिंग के लिए एंगल्स यानी तीनों वर्टेक्स, तीनों एंगल्स पॉइंट्स जो है हमें गिवन होते हैं। जो मेन लेबलिंग है हमारी वो है साइड्स के लिए। साइड्स हमें नहीं पता होता था कौन सा साइड क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट डी, जिसे आप एंगल डी भी कह सकते हैं, जिससे इसका कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो डी वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होगा दैट विल बी योर स्मॉल डी साइड। तो ये जो 9 cm है डी के बिल्कुल अपोजिट वो हमारा ये साइड है, साइड EF, और इसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब F के अपोजिट ये साइड है, सो दैट विल बी योर स्मॉल f, और E एंगल के अपोजिट ये साइड है तो ये आपका बन जाएगा स्मॉल e। अब यहाँ पर जो हमारे पास वर्किंग है वो साइड D और F के लिए है। अब हम यहाँ डेटा बनाएंगे। D की मेजरमेंट हमारे पास 9 cm है, F इज इक्वल्स टू 7 cm। अब D और F अगर हमारे साइड हैं तो हमारा इंक्लूडेड एंगल ऑब्वियसली क्या होगा, एंगल E होगा, और वो भी हमें गिवन है, वो है 111। फाइंड हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल एंड द गिवन ट्राइंगल इज ट्राइंगल DEF। यहां हम मेंशन करेंगे क्वेश्चन मार्क, यहां हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने अप्लाई करना है अपना फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला जो बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके सामने, ये इस वक्त डिफॉल्ट कंडीशन में है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मींस क्वेश्चन टू क्वेश्चन दिस विल वेरी अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल का नेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी ट्रायंगल DEF है। हमने इसे रिप्लेस कर दिया ABC से। अब जब आपने लेफ्ट साइड में फॉर्मूले के वेरिएशंस की हैं तो ऑब्वियसली राइट साइड पे भी वही वेरिएशंस अप्लाई होंगी। AB हमारे पास बन जाएगा साइड DF, हमारे गिवन साइड्स D एंड F, और साइन हम अप्लाई कर लेंगे साइन E पर, यानी एंगल E पर। अब बहुत ही आसानी के साथ आप देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। 1/2 हमने सेम रखना है। D की मेजरमेंट है हमारे पास 9, F is 7 and sin will be applied on 111 degrees। क्यों? D is 9, F is 7 and sin will be applied on 111। Done? 7 9s are, this is 63 and 63 will be multiplied by 1, so it will become 63/2 sin 111 degrees। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मेजर मिस्टेक कर देते हैं, वो साइन जो 111 डिग्रीज है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट आप वो भी पहले कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगी दैट इज रॉन्ग। You may solve the sign first, but after solving the sign you will definitely have a number that is a decimal number। तो फिर वहां पर आपके पास पॉइंट्स में वेरिएशंस आ जाती हैं। यदि हम 3 डिजिट से वर्क करें या 4 डिजिट से वर्क करें, एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है। सो द सिंपल वे और आसान तरीका जो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अप्लाई है, वो ये है कि आप साइन 111 डिग्रीज को इस फ्रैक्शन के आंसर से, जो खुद भी एक डेसिमल पर नंबर होगा, उसी से डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर पर अप्लाई कर लीजिए। अब 63 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, तो 63 अब 2 से डिवाइड होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा? ये देखिए 63 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 31.5 डिग्रीज। 31.5 डिग्रीज को हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे और डायरेक्टली इसके साथ लिख देंगे साइन 111 डिग्रीज। और कैलकुलेटर पे भी हम इसी तरह वर्क करेंगे। 31.5 डिग्रीज के बाद हम प्रेस करेंगे आंसर की एंड देन वी विल टाइप साइन 111 एंड द आंसर इज 29.40। 29.40 is your final answer and this is the area of triangle DEF। अब आपने ट्रायंगल DEF का एरिया कैलकुलेट कर लिया है। इसकी मेजरमेंट्स की अगर हम बात करें, यूनिट्स की अगर हम बात करें, तो यूनिट आप हमेशा वही मेंशन करेंगे जो कि आपको साइड्स के साथ गिवन है। अब साइड्स हमारे थे D और F, तो साइड D और F की जो मेजरमेंट है वो किस में की गई है? सेंटीमीटर्स में की गई है। तो यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर मेंशन करेंगे, लेकिन ख्याल आपको हमेशा इस बात का रखना है whenever you are working you are solving the formula of area, तो जो आपका आंसर है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगा, यानी आपकी यूनिट पर हमेशा स्क्वायर मेंशन किया जाएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हमने दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया है 9 and 7 and both are in the centimeters, so centimeter into centimeter becomes centimeter square, that is why we have to mention the square over here on this centimeter। और अगर आप यूनिट पर वर्क नहीं करते, यूनिट को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो एग्जाम में आपकी यूनिट्स के मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर हर एरिया के आंसर के साथ यूज करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इन ट्रायंगल ABC side AB is 32 centimeter, side BC is 43 centimeter and triangle and angle ABC is 67 degrees। और एक डायग्राम भी हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है, देन हेंस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द A टू साइड BC। अब उसके लिए आप डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले
तो डायग्राम हमने ड्रॉ कर लेनी है 67 डिग्रीज के साथ। ये हमारा साइड ए है, ये बी है, ये हमारा सी वर्टेक्स है और इनको हम इस तरह ज्वाइन कर देंगे। एंड ओवर हियर वी आर हैविंग एन एंगल ऑफ 67 डिग्रीज। और उसके बाद हमारे पास साइड ए बी है 32 cm और साइड बी सी हमें गिवन है दैट इज 43 सेंटीमीटर। डेटा लिखेंगे, उससे पहले हमें यहाँ के साइड्स लेबल करने होंगे। ए के अपोजिट ये आपका स्मॉल ए है और सी के अपोजिट ये आपका स्मॉल सी है। तो ए और सी के लिए आपका इंक्लूडेड एंगल ऑब्वियसली एंगल बी होना चाहिए, वो भी आपको गिवन है। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि साइड ए भी हमें गिवन है विद द मेजरमेंट of 43 centimeter and C is also given as 32 cm and now for the angle B that is 67 degrees। ये तीनों मेजरमेंट्स हमने यहाँ नोट कर लिए हैं। अब रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पर थोड़ी सी वेरी हो गई हैं फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में तो हमें वही फाइंड करना है जो कि हमने फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी एरिया ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। अभी हमारा गिवन ट्राइंगल ABC है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी में DEF था तो हमने उसके अकॉर्डिंग वर्क किया था। अब हम दोबारा से ABC का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और नंबर 2 रिक्वायरमेंट हमारे पास एक और है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करें। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है एक कैपिटल डी जिसे हम इन्वर्ट कर देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, तो इट विल बिकम द साइन ऑफ द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ द सिंबल्स। यहाँ पर हमने सिंबल यूज कर लिया परपेंडिकुलर का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट ए से लाइन सेगमेंट BC की तरफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू साइड BC। क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ये भी अननोन है। अब सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर और फर्स्ट हेड लगाएंगे पार्ट नंबर 1 की रिक्वायरमेंट का। फर्स्ट हेड हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास, पहले हम यहाँ कॉलोन बनाएंगे क्योंकि हमारा हेड है। अब हम यहाँ इसकी फॉर्मूला एप्लीकेशन कर लेंगे। वन ओवर टू इज कांस्टेंट और गिवन साइड से हमारे पास A और C, ये हमें कहाँ से पता चला, हमारे डेटा से पता चला। साइन हम अप्लाई करेंगे इंक्लूडेड एंगल यानी एंगल B पर। इसके बाद वैल्यूज पुटिंग और फॉर्मूला एप्लीकेशन का जो तमाम तर काम है वो आपने खुद करना है। सिंपल पार्ट है, इजी पार्ट है, बिल्कुल डेफिनेट इसकी कैलकुलेशंस है जिस तरह से आपको पार्ट 1 में सिखाई गई है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी में, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अब मैं नंबर 2 की कंप्यूटेशंस यहाँ आपको कर दिखा रही हूँ। इसका आप हेड लगाओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू साइड BC। यहाँ पर हमने अंडरलाइनिंग कर देनी है। और अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करने लगे हैं हम, पहले हमें अपने डायग्राम को लेबल करना होगा। एक और वेरिएशन नई जो अमेंडमेंट है इसमें करनी होगी, वो क्या है, वो ये है कि आपने पॉइंट A से पॉइंट BC तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, परपेंडिकुलर का वर्ड जहां पर भी आता है वहां आपके पास 2 लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट होनी चाहिए कि वो बना ले कैपिटल T। तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट BC, ये है हमारा पॉइंट A। तो इसके सेंटर से हमने एक लाइन इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करनी है ताकि ये T फॉर्म में आ जाए। और ऑब्वियसली यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस है। अब इसके बाद जो आपका डिस्टेंस है वो ये वाली लाइन सेगमेंट है जो यहाँ पॉइंट A से शुरू हो रही है और इस लाइन सेगमेंट पे यहाँ जाकर खत्म हो रही है। तो आप यहाँ x मेंशन करेंगे, ये डिस्टेंस अननोन है जो कि हमें फाइंड करना है, तो हमने इसे x सपोज कर लिया और यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब इस x के लिए आपने वर्किंग करनी है। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का मेन एरिया फॉर्मूला होता है 1/2 b इंटू H। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पार्ट 1 में, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 29.5 सेंटीमीटर, 633.3 सेंटीमीटर। इसका हम यहाँ फाइनल आंसर मेंशन कर लेते हैं 63.3
सेंटीमीटर स्क्वायर। वो आप यहाँ राइट डाउन करोगे 633.3, 1/2 आप सेम रखोगे। बेस साइड आपकी ये साइड है 32 सेंटीमीटर, बल्कि आपका परपेंडिकुलर यहाँ जा रहा है तो आपकी बेस साइड ए बन जाएगी, तो आप बेस साइड 43 रखेंगे। एच हमारा वो डिस्टेंस है जिसे हमने फाइंड करना है, ये हाइट है हमारी जिसे हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हाइट। अब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 43 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, 633.3 है, इसको डिवाइड करवा लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 21.5 मल्टीप्लाई बाय एच। तो 43 डिवाइडेड बाय 2 21.5, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके एच के साथ, और 633.3 आपने कांस्टेंट रखना है लेफ्ट हैंड साइड पर। अब आप अपनी इक्वेशन भी पलटेंगे, एक ही स्टेप में हमने दोनों काम करने हैं। पहले हम अपना h यहाँ रखेंगे, बल्कि हम अपने इस h को इस स्टेप में x कर लेंगे, यहीं पर आप इसे x कर दीजिए, उससे हमें आसानी रहेगी, हम दो वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं होंगे। x हम लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पर हमारी अननोन वैल्यू, और 633.3 जो कि हमारा लेफ्ट साइड था, ये डिवाइड हो जाएगा 21.5 से, जो कि हमारे x को कर रहा था मल्टीप्लाई। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आंसर निकालने लगे हैं हम, 633.3 डिवाइडेड बाय 21.5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 29.45 सेंटीमीटर्स, 29.45। और आपको पता है राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस, जो लास्ट डिजिट है आपका फ्रॉम द राइट हैंड साइड दैट मस्ट बी, अगर वो 5 है या 5 से ग्रेटर है तो आप इसे कट ऑफ करके +1 देंगे अपने लेफ्ट वाले नंबर को, तो ये बन जाएगा 29.5 cm एंड दिस इज द आंसर ऑफ x। तो ये बन जाएगा आपके पास x का आंसर, यानी ये बन गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू लाइन सेगमेंट BC। हो गया टाइम? ओके जी, तो ये था आपका रिवीजन फॉर एक्सरसाइज 8B। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैप्टर 8 को वाइंड अप करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।